کراچی سے خیبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ غازی خان میں گٹر میں گرنے والے بچے کو بچاتے ہوئے 2 نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سرگودا ناروال اور جھنگ میں جنا آبادی 5 مرلہ اسکیم کے تحت بے گھر افراد میں پلاٹس کی تقسیم۔ لاہور سمیت ملک بھر میں سی این جی ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہڑتال دوسرے روز بھی جاری۔ سیالکوٹ میں احتجاجی ریلی۔ ملتان میں ایپٹا کی کال پر تنخواہوں میں 20% اضافے کے خلاف سرکاری ملازمین کی ہڑتال، احتجاجی ریلیاں۔ اچ شریف میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، درجنوں موٹر سائیکلیں سیل۔ کنکوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مشتعل افراد نے ٹائر چلا کر انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل۔ کوٹری میں مطالبات کے حق میں محکمہ سوئی گیس کے ملازمین کی ہڑتال، دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا۔ ہائیڈرو الیکٹرک یونین کی کال پر وابڈا کی نجکاری اور این آر سی کے فیصلے کے خلاف ضلع گھوٹکی میں دفاتر کی تالہ بندی، احتجاجی مظاہرے۔ اور قلات میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ سے چیری، سیب، آڑو، خوبانی اور گندم کی تیار فصلیں تباہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے صبح پنجاب کی خبروں سے۔ ڈیرہ غازی خان میں گٹر میں گرنے والے بچے کو بچاتے ہوئے 2 نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سبزی منڈی کے قریب 10 سالہ محمد سلیمان گٹر میں گر گیا، جس کو نکالنے کے لیے محمد نواز اور محمد طاہر بھی گٹر میں کود گئے۔ تاہم واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے بچے کو گٹر سے نکال لیا۔ تاہم بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کرنے والے دونوں نوجوان محمد نواز اور محمد طاہر گٹر میں گر کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ امدادی ٹیم کے کارکنان نے دونوں نوجوانوں کو مردہ حالت میں گٹر سے نکالا، جبکہ گٹر سے نکالے جانے والے بچے کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنا آبادی 5 مرلہ اسکیم کے تحت ضلع سرگودا میں 10,431 پلاٹس قرآن اندازی کے ذریعے بے گھر افراد میں تقسیم کیے گئے۔ جنا ہال سرگودا میں منعقدہ قرآن اندازی کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل کوآرڈینیٹر بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، چودھری شاہ نواز رانجھا کے علاوہ ڈی سی او سرگودا عظمت محمود، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر سرگودا نظر عباس، بلوچ روڈ سمیت تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور درخواست دہندگان نے شرکت کی۔ تقریب میں سرگودا میں 23 جنا آبادی کے 277 پلاٹس، تحصیل شاہپور کی 1 جنا آبادی کے 120، تحصیل ساہیوال کے 2 جنا آبادیوں کے 172، تحصیل بھلوال کی 6 جنا آبادیوں کے 669، تحصیل کوٹ مومن کی 1 جنا آبادی کے 199 اور تحصیل سلاوالی کی 55 جنا آبادیوں کے 5044 پلاٹس شفاف کمپیوٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے بے گھر اور مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ چیف منسٹر پنجاب جنا آبادی اسکیم کے تحت ناروال میں بھی کمپیوٹرائز قرآن اندازی کی تقریب منعقد کی گئی۔ قرآن اندازی کے ذریعے ضلع بھر میں 327 پلاٹ، جن میں ناروال کے لیے 92، شکرگڑھ کے لیے 175 اور ظفروال کے لیے 60 پلاٹ، جبکہ 5 مرلہ بیواؤں، شہداء اور بے زمین غرباء میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی سی او ناروال احمد علی کمبو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس اسکیم کا ناروال میں بھی اجرا کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بے گھر افراد کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے مفت پلاٹ دیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب بھر میں یکساں کمپیوٹرائزڈ نظام
इस्तेमाल किया गया है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अरशद बेग, एसी नारोवाल आफ्ताब खान, एसी शकरगढ़ मियां रफीक, एसी जफरवाल अख्तर भुट्टा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर नारोवाल मोहम्मद तुफैल भी मौजूद थे। डीसीओ झंग मोहम्मद शाहिद नियाज ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सूबे में बेघर और मुस्तहिक अफराद को 5 मरला स्कीम के तहत मुफ्त प्लॉट देने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। झंग में जिना आबादियों में फेज 2 के तहत दरखास्त दहिंदगान को प्लॉटों के अलॉटमेंट के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिला में 25 जिना आबादियां बनाई गई हैं, जिनमें तहसील झंग 9, शोरकोट 2, 18 हजारी में 2 और अहमदपुर सियाल की 12 जिना आबादियां शामिल हैं। उनका कहना था कि इन जिना आबादियों में 8,860 प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए दी जाने वाली दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद कुरानदाजी के जरिए 5,579 मुस्तहिकीन के नाम निकाले गए हैं, जिनमें बेघर बेवगान और शहदा के वर्सा भी शामिल हैं। बातज़ा मेंबरान सूबाई असम्बली ने अपने हल्का में वाक़े जिना आबादियों में प्लॉटों की कुरानदाजी में हिस्सा लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। मुल्क भर में सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से टैक्स के निफाज के खिलाफ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है, जिसके बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज़ा हफ्तावार बंदिश के बाद आज सुबह खुलने थे, लेकिन एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से बदस्तूर बंद पड़े हैं। मुसलसल 4 रोज़ा बंदिश की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि हुक्मरानों ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। घर जाते हैं तो बिजली नहीं, बाहर आते हैं तो सीएनजी नहीं मिलती, जिससे काम काज पर जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब कराची में कुछ सीएनजी स्टेशन खुले हुए हैं, जहां गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा सकती हैं, तमाम सड़कों से बेशतर ट्रैफिक गायब है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सीएनजी की बंदिश का आज दूसरा रोज है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से बसों और रिक्शों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। सियालकोट में सीएनजी एसोसिएशन की अपील पर सीएनजी मालिकान और मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर सीएनजी एसोसिएशन के हफ्ता में 3 रोज बंदिश के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई चौक अल्लामा इकबाल पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करके सीएनजी स्टेशन लगाए गए, लेकिन अब हफ्ते में 3 रोज सीएनजी स्टेशन बंद रहने से कारोबार तबाह हो चुका है और मुलाजमीन भी परेशान हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीएनजी स्टेशन की हफ्ता में 3 रोज बंदिश खत्म की जाए। मुल्तान में एप्का की कॉल पर तनख्वाहों में 20% इजाफे के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल की और एहतजाजी रैलियां निकाली। एप्का मुल्तान डिवीजन के ज़रिए तमाम अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब, सर्किट हाउस मुल्तान, चौक कचहरी मुल्तान और नश्तर अस्पताल के एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस मौका पर एप्का रहनुमाओं का कहना था कि वो वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई में इजाफे के मुकाबले में 20% इजाफा बहुत कम है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 35% इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो मुकम्मल तौर पर कलम छोड़ हड़ताल और दफातर की तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। गुजरांवाला पुलिस ने इस्लामाबाद से चोरी होने वाली पीटीसीएल की 6 करोड़ से जायद मालियत की वायर पकड़ ली। ताहम एफआईए और पुलिस के दरमियान वायर और मुल्जिमान की हवालगी पर ठन गई है। थाना आरोप पुलिस ने इतला मिलने पर मिल पर छापा मारकर ट्रकों में लोड की जाने वाली 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत की पीटीसीएल वायर कब्जे में लेकर मिल मैनेजर और क्लर्क को हिरासत में ले लिया। ताहम कार्रवाई के चंद लम्हे बाद ही एफआईए हुकाम भी मौका पर पहुंच गए। दोनों महकमों के दरमियान हिरासत में लिए जाने वाले अफराद और वायर की हवालगी के हवाले से तनाज़े खड़ा हो गया है। ताहम पुलिस ने मुल्जिमान और कब्जे में ली जाने वाली वायर एफआईए हुकाम के हवाले करने से इनकार कर दिया। एसएचओ थाना आरोप इमरान अब्बास का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर असिस्टेंट डायरेक्टर मुनव्वर इकबाल रांझा का कहना है कि पीटीसीएल की करोड़ों रुपए मालियत की तार इस्लामाबाद से चोरी करके मिल में मुंतकिल की गई थी, जहां से इस तार को फरोख्त के लिए मिस्री शाह मुंतकिल किया जाना था। सियालकोट में मुशीर दाखिला रहमान मलिक की हिमायत में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने रोड ब्लॉक करके
احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما زیغم جٹ اور شہباز کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے کارکنان نے مین چوک میں ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کر دی۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مشیر داخلہ رحمان ملک کی حمایت میں مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے 2 گھنٹے تک چوک بلاک کیے رکھا جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ناروال میں انجمن تاجران نے شہر میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مختلف احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے پولیس کی ناقص کارکردگی پر احتجاجی کیک بھی کاٹا۔ انجمن شہریوں کے صدر شیخ سائر علی نے کہا کہ ناروال میں آج تک کسی بھی واردات کا ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر اور سرپرست انجمن شہریاں ملک طارق محمود امان نے کہا کہ پولیس شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ جماعت اہل سنت کے امیر علامہ قاضی محمد یعقوب رضوی، انجمن تاجران کے صدر حاجی الیاس بٹ، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران ڈاکٹر طارق اپل اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس شریف میں ڈی پی او بہاولپور کے حکم پر پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ شفقت عطا کی قیادت میں پولیس ٹیم نے شہر کے داخلی راستوں کو سیل کرنے کے بعد رجسٹریشن اور نمبر پلیٹس کے بغیر 2 درجن موٹر سائیکلیں تھانے میں بند کر دیں۔ اس موقع پر پولیس نے موٹر سائیکل مالکان کو گاڑیوں کی فوری رجسٹریشن کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پولیس ٹیم کا کہنا تھا کہ گرینڈ آپریشن کا مقصد قانون کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے تاکہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد موٹر سائیکلوں کو وارداتوں میں استعمال کرنے کی جرات نہ کریں۔ سیالکوٹ میں محکمہ تعلیم کے ضلعی صدر دفتر میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری گاڑیاں کھلے آسمان تلے پڑی تباہ ہو گئیں۔ ای ڈی او ایجوکیشن کے دفتر میں 5 سال قبل 15 سرکاری گاڑیاں خراب ہونے کی وجہ سے کھڑی کی گئی تھیں جن کی مرمت اور ٹھیک کروانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے کھلے آسمان تلے کھڑی یہ گاڑیاں نہ صرف زنگ آلود ہو گئی ہیں بلکہ ان سرکاری گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، انجن اور سیٹیں تک چوری ہو گئی ہیں۔ تباہ شدہ گاڑیاں سرکاری اسکولوں کے اچانک معائنے کے لیے ایجوکیشن افسران استعمال کرتے تھے، لیکن ان گاڑیوں کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے سرکاری اسکولوں کے معائنہ کی مہم بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ادھر کئی سالوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ تعلیم کا دفتر بھی کسی کمی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دفتر میں موجود ملازمین کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن افسران کی جانب سے دفتر پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے قیمتی سرکاری گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ گوجرانوالہ میں تاجروں نے کمرشل پراپرٹی میں فی مرلہ ٹیکس اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گل روڈ، ٹی سی روڈ، جناح روڈ، سوئی گیس روڈ کے دکانداروں نے انڈر پاس چوک پر ٹائر جلا کر شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کمرشل پراپرٹی پر عائد ٹیکس نامنظور کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کمرشل ٹیکس میں کیے جانے والے اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قبل ازیں وہ 1 مرلہ کمرشل پراپرٹی پر 79,000 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے جسے بڑھا کر 1,15,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے باعث کاروبار پہلے ہی ٹھپ پڑے ہیں، ایسے میں کمرشلائزیشن ٹیکس میں اضافے سے ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ سول لائن پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے جس پر دکاندار پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں پنجاب حکومت کی جانب سے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ طلبہ نے میرٹ پر لیپ ٹاپ کی تقسیم نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جناح آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب کے دوران ایم فل اور انجینئرنگ کالج کے طلبہ و طالبات کا احتجاجی مظاہرہ ہوا اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ طلبہ نے کہا کہ میرٹ پر پورا اترنے کے باوجود انہیں لیپ ٹاپ نہیں دیے جا رہے اور انتظامیہ ٹال مٹول کر رہی ہے۔ طلبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ اب لیپ ٹاپ تقسیم کے طریقہ کار کو شفاف اور آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سیالکوٹ میں پولیس نے جانوروں کے فضلے سے گھی تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ فیکٹری مالک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تھانہ مراد پور کے گاؤں گوہد پور میں واقع ایک گھر میں جانوروں کے فضلے سے مضر صحت گھی تیار ہوتا تھا۔ شکایت ملنے پر ڈی سی او
زاہد سلیم گودل نے اسسٹنٹ کمشنر مظہر اقبال کو واقعی تحقیقات کا حکم دیا۔ پولیس نے چھاپا مارا تو گھی کو ڈرموں میں بند کر کے سپلائی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے گھی کے تمام ڈرم قبضے میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا، جبکہ ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب فیکٹری مالک دیگر ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق مذکورہ فیکٹری 1.5 سال قبل قائم ہوئی تھی، جس میں جانوروں کے فضلہ جات کو پگھلا کر مضر صحت گھی تیار کیا جاتا تھا۔ خبروں کے سلسلے میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ صادق آباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ صادق آباد میں چوری کی واردات میں ساتھ نہ دینے پر شوہر نے بیوی پر تشدد کرتے ہوئے اس کے سر کے بال کاٹ دیے۔ بستی طبہ کامدار کی رہائشی شاہدہ کی 8 سال قبل سبزی منڈی کے رہائشی شفیق سے شادی ہوئی، جس نے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے چوری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ گزشتہ روز شفیق نے اپنی بیوی کو مجبور کیا کہ قتل کے بہانے سامنے والے گھر میں نیند کی گولیاں ملی کھیر دے کر آئے، جس پر شاہدہ نے انکار کیا تو شفیق نے نہ صرف اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اسے 3 دن تک کمرے میں محبوس رکھا اور اس کے سر کے بال کاٹ دیے، جبکہ شاہدہ کے گھر والوں نے اسے آزاد کرایا اور تھانہ سٹی میں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ادھر متاثرہ خاتون کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم شفیق کا تعلق جرائم پیشہ عناصر سے ہے اور انہیں جان کا خطرہ بھی ہے، لہٰذا ملزم کو سخت سزا دی جائے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ دھرتی۔ سندھ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹھٹھا کی۔ ٹھٹھا شہر میں بروہی اور خشک برادری میں معمولی بات پر جھگڑے پر کھلے عام فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خشک اور بروہی برادری کے درمیان جھگڑے کے دوران دونوں گروپوں میں کھلے عام فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد عزیز اختر اور طارق خشک زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فائرنگ کے باعث ٹھٹھا شہر مکمل طور پر بند ہو گیا اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ تینوں زخمیوں میں سے ایک زخمی کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شہر کے دیگر شہروں کی طرح کند کوٹ میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف مشتعل افراد نے ٹائر چلا کر انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا، جس سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیامت خیز گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے ان کا جینا محال کر دیا ہے، جبکہ بجلی نہ ہونے سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی تو وہ احتجاجی دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے، جس پر تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ حیدرآباد میں پیغام یونین کو CBA کا سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کے خلاف وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین نے لیبر ہال سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین کے صدر عبداللطیف نظامانی اور صوبائی سیکرٹری اقبال قائم خانی، نواب چھاچرو، غلام عباس، سراج بیگ اور دیگر نے کہا کہ پیغام یونین کو CBA کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے، جو مسلسل 4 مرتبہ ریفرنڈم میں ہائیڈرو یونین کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور 1 سے زائد حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ نام نہاد یونین نہ صرف ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے بلکہ ادارے کی نجکاری میں آ کر اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد کی بدولت حکومت نے وابڈا اور پاور ہاؤسز کی نجکاری کا فیصلہ واپس لیا ہے۔ ٹنڈوالایار میں مونسون کی بارشوں نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ تعلقہ ٹنڈوالایار پانی میں ڈوب گیا، گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ میونسپل کمیٹی ٹنڈوالایار میں CBA یونین 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے باعث 37 ورکرز کام کرنے کے بجائے الیکشن مہم میں مصروف ہیں، جس کے باعث تعلقہ ٹنڈوالایار کی تمام کالونیاں
गंदे पानी के सैलाब में डूब गई हैं। बेशतर इलाकों में चारों इतराफ में पानी जमा होने के बायस इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं और इलाके में मूसी इमराज फूटने का खदशा बढ़ गया है। मुख्तलिफ कॉलोनियों के रिहायशियों ने आला हुकाम से मुतालिका इंतजामिया की इस मुबैना गफलत का नोटिस देने की अपील की है। नाअहल अफसरान, कामचोर सेंट्री वर्कर्स, इंस्पेक्टर्स और यूनियन के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सिंध के इलाके झंडूमरी का कदीमी गांव बिहार मीरजद जदीद और बुनियादी सहूलियात से महरूम होने के बायस मसाइल का शिकार है। झंडूमरी का कदीमी कोर्ट बेहतर निज़ाम न होने के बायस गंदगी और ताफुन का ढेर बनता जा रहा है। मुनासिब सीवरेज के निज़ाम की अदम मौजूदगी के बायस पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके बायस इलाके में मूसी इमराज फूट पड़े हैं। मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान के अदम तवज्जुही के सबब ये गोट पानी, बिजली, गैस और टेलीफोन जैसी बुनियादी सहूलियात से ताहाल महरूम है। साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरान से मुतालबा किया है कि गोट के साथ सौतेली मां जैसा सलूक करते हुए बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई ताकि लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। पीएमए सिंध के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पीर मंजूर अली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉक्टर्स के तबादलों से गुरेज किया जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि महकमा सेहत की नाइंसाफियां हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट सक्खर बेंच से केस जीतने के बावजूद 4 टायर फार्मूला जो खुद हुकूमत सिंध ने दिया था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 4 जून को 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें डॉक्टर्स को ज़हनी टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं दिया गया, जबकि डॉक्टर्स को कराची से अंदरून सिंध ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध के डॉक्टर्स को टाइम स्केल देने के साथ फौरी तौर पर टायर प्रोग्राम में अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। कंदकोट में महकमा सेहत को सालाना करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद गांव बगन खान बंगवार में एक ही खानदान का 3 बच्चों में पोलियो का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हजूर बख्श। दराज से एंटी पोलियो मुहिम पूरी दुनिया में चलाई जा रही है। ताहम इंसानी नाते के बायस दुनिया के समाजी अदारों अरबों रुपए डॉलर इस मुहिम के लिए फंड फराम कर रहे हैं, जबकि इस तरह जिला कश्मीर एट कंदकोट के महकमा सेहत को भी सालियाना करोड़ों रुपए मिलते हैं। उसके बावजूद कंदकोट के गाँव बगन खान बंगवार में एक ही खानदान के 3 बच्चों में पोलियो जाहिर हुआ है, जिनमें 2 भाई 12 साल मुश्ताक, 10 साल माशूक और 4 साल मासूम जहीरा शामिल हैं। उन्होंने कहना था कि हमारा गाँव शहर के चंद गज के फासले पर है, लेकिन महकमा सेहत के अफसरान की बेहसी और अदम तवज्जी की इंतहा हो चुकी है, जो कि आज तक हमारे गांव में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। बच्चों के बाप मोहम्मद उस्मान का कहना था कि मैं कई मर्तबा डॉक्टरों के पास गया, वो चीखो पुकार की, लेकिन मेरी कुछ सुनी नहीं गई और न ही मेरे बच्चों को दवाई या पोलियो के कतरे पिलाए गए। कंदकोट के महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि बच्चों को पोलियो की बीमारी नहीं बल्कि कोई और बीमारी है जो कि काबिल इलाज है। माजूर बच्चों के बूढ़े माँ बाप ने बैनुल-अक़वामी समाजी अदारों और मुल्क में सेहत पाकिस्तान के बाला अफसरान से अपील की है कि वो नोटिस लेकर मेरे बच्चों पर रहम खाकर उनके इलाज करवाएं, ताकि मेरे घर के बुझे हुए दिए दोबारा रोशन हो जाएं। कैमरा में नजर मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, वक्त न्यूज, कंदकोट। आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलते हैं, जहां कोहिस्तान जिरगा केस में मुतासरा लड़कों का भाई अफसल मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। वो इतनी सियासी कुव्वत है और हर किस्म की इनकी हिमायत की जाती है पूरा इलाके। मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं हूँ जब तक ये लड़कियां लाके सुप्रीम कोर्ट में पेश जिंदा नहीं करें। अफजल, पूरा इलाका ये गवाही दे रहा है कि लड़कियां जिंदा हैं पूरे इलाके में। उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ इनके जो इंसानी हकूक की जिम्मेदार खवातीन है, सबसे ज्यादा शोर तुम्हारे। आपको सर्विस अस्पताल लाहौर लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। जिंदगी खतरे से बाहर है और तसल्ली बख्श है। तीन एक्सपायर हो गए और 3 की हालत जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। बाकी सब उनका इलाज मुआवजा सब बहुत उम्दा तरीके से हो रहा है और डॉक्टर फैसल मसूद जो यहाँ के प्रिंसिपल उनकी निगरानी में हो रहा है और पूरी तसल्ली बख्श
इलाज मुआवजा हो रहा है। सर इससे पहले भी मियां साहब यहाँ पे ऐसे वाकयात हो चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ पे ऐसे वाकयात हो चुके हैं और आग लगने से बचाव के यहाँ इंतजाम भी नहीं है। एक ही दरवाजा था, अस्पताल का अमला छोड़ के भाग गया था। कल भी पंजाब असेंबली में इनको तलब किया गया, इनकी गंदी कारकर्दगी भी इस अस्पताल के। आप इस बारे में क्या कहें? बहरहाल इसकी मैंने जिस तरह कहा है कि मैंने फौरन इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी इंशाअल्लाह उसके मुताबिक फिलफौर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे और जहाँ जहाँ खामी पाई गई उसके बारे में जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। जो आग लगी है ये कह रहे हैं जी कि जी शॉर्ट सर्किटिंग है, इसका जिम्मेदार, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें पुराना क्यों नहीं है पहले से प्रीएम्प्ट किया गया कि यहाँ पे ये इस तरह का हादसा हो सकता है, इसको क्यों नहीं रिपेयर किया? हालांकि होते भी रहे। मैं देखिए बात यह है कि अब मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिएगा। उसके रोशनी में बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उनके वालिदैन जो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें इंतहाई अफसोस है और उनसे दिल की गहराइयों से हमदर्दी है। वो बेचारे जन्नती से चले गए। मैं अब आपसे इंशाअल्लाह ये कह रहा हूँ कि जो ही इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी गरीब लोग इमदाद का ऐलान आप करेंगे। अक्सर सरकारी उनकी वायरिंग मखदूश हो चुकी है, उनकी बिल्डिंग को खतरा है, इस हवाले से आप बताएंगे ओवरऑल क्या पॉलिसी होगी? देखिए मुझे नहीं पता कि ये अपना शॉर्ट सर्किटिंग है या लोड शेडिंग है, ये क्या है। आप इस वक्त मैं और आप इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते। मैं ये वादा करता हूँ कि जो ही रिपोर्ट आएगी इसके ऊपर भरपूर इंशाअल्लाह इक़दाम किए जाएंगे। इमदाद के वाले से इनके लिए इमदाद जी जो भी मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि 3 बच्चे उनकी अमवात वाक़ हो गई हैं और इमदाद इंशाअल्लाह जो हमारी पॉलिसी है उस मुताबिक बिल्कुल दी जाएगी। लेकिन मैं ये इस वक्त इंतहाई सेंसिटिव मौका है, उनके माँ बाप अंदर बच्चों के साथ हैं, लेकिन ये जो आप कर चुके सवाल किए तो उसका जवाब यही है कि इंशाअल्लाह हुकूमती पॉलिसी जो मेरी है उस मुताबिक यकीन कि तमाम अस्पतालों में आग बुझाने की कोई इंतजाम नहीं है, ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि ये आइंदा कोई इस किस्म का वाक़या ना हो। जी इंशाअल्लाह बिल्कुल मैंने कहा है कि जो ही रिपोर्ट आएगी न सिर्फ इस अस्पताल के लिए बाकी जगहों को भी इंशाअल्लाह मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। सर्विस के बाहर मियां शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की कॉल पर वापडा की मुजवज़ा निजकारी चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल न करने और NRC के फैसले के खिलाफ जिला घोटकी के मुख्तलिफ शहरों में दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ढेरकी, मीरपुर माथेलो और ओबाड़ो घोटकी में मुलाजमीन ने काम छोड़कर हड़ताल करते हुए दफातर की तालाबंदी कर दी। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर सख्त एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के ज़िलाई रहनुमा मोहम्मद मलूक जतोई, अकबर अली दश्ती, सलीम समेजो, हक नवाज सोमरो और दीगर ने कहा कि NRC के NGOs के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये देखते हैं। लोग भी थे, वो लोग शीना बोलते हैं, लेकिन मर्दों में तकरीबन हर दूसरा मर्द जो है वो उर्दू बोल रहा था वहाँ पे उस गांव में। सरटे जो गांव है बहुत दूर है, वहाँ सड़क वड़क नहीं जाती है और इसके अलावा जो लड़कियाँ हैं वो सिर्फ शीना स्पीक करती हैं, तो वहाँ पर हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो मुश्किल ज़बान नहीं है, आधी आधी आपको वैसे भी समझ में आती है। वहाँ पर इन्होंने जब हम गए हैं तो उनके घर बिल्कुल खाली थे उस जगह पे, अब वो सब पहाड़ों के पीछे अपने मवेशी लेके चले गए हुए थे, तो बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा। फिर एक पैगाम भेजा गया सबको, तो जितने बड़े हैं मुख्तलिफ इलाकों से वो सब इकट्ठे हुए, मगर वो अपनी औरतें नहीं लाए, इसलिए हमें औरतों तक पहुँचने में बहुत मुश्किल हुई। और एक जो इनका खदशा था कि एकदम इश्तियाल आएगा कि क्यों बाहर से औरतें आई हैं या हमारी औरतों की बात क्यों है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ बात की और वो बहुत वो रिगार्ड कर रहे थे कि तुम लोग अपनी औरतें लेकर आए हो हमारे पास, तो इस बात का वो रिगार्ड कर रहे थे। कोई उनको गुस्सा नहीं इस बात पे आ रहा था कि कोई हमारी इज्जत पे कोई हर्फ आ गया। मैं थोड़ा सा मैं इसी सवाल के जवाब में सिर्फ ये बता दूं, देखिए ये हमें भी शुबा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो ट्रांसलेशन कर रहा है वो कोई अपने मतलब की ट्रांसलेशन निकाले, तो हमने वो चीज़ रिकॉर्ड की है। हम खुद अपने तौर पे वेरीफाई करवाएंगे कि वो जो बताया उन्होंने वो वही है जो उन्होंने हमें वहाँ बताया था,
तो ये एक एविडेंस हमारे पास है। फरजाना बारी, आप ये बताइएगा कि जिस मौलवी जावेद ने ये फतवे के मुतालिक कहते हैं कि उसने फतवा दिया, उससे आप लोग मिले हैं, क्या उसने कहा है मैंने ये फतवा कत्ल का दिया है या नहीं दिया है? उसने कहा है कि नहीं दिया और उस इलाके वाले भी कह रहे हैं कि नहीं दिया। वैसे उस इलाके में हमने इतने फतवे इकट्ठे किए हैं जो उन्होंने औरतों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ दिए हुए, और निस्वार के हक में फतवे भी वहाँ पे हैं। मर्दों की निस्वार के लिए उनके वो क्या है, अब्दुल हलीम साहब, मौलाना अब्दुल हलीम ने अब फतवा दिया है कि निस्वार खाना रमजान में जायज है। तो हमने फतवे ढेर सारे इकट्ठे किए। अब आप ये आपका ये मर्दों का इस्लाम होगा, मर्दों का इस्लाम होगा, और तो फिर उसमें ये चीजें जायज होंगी। औरतों के इस्लाम में क्या है नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, हम सिर्फ उन दो औरतों की बात कर सकते हैं जिन्हें हम मिलकर आए हैं। सिर्फ हम ये समझते हैं कि क्योंकि हमारा जिस ख्याल से हम गए थे कि तमाम की तमाम जो है उनको कत्ल कर दिया गया है, तो क्योंकि दो हमें महफूज मिली है और वो दो बता रही हैं कि फलां जो है पहाड़ के उस पहाड़ पे रहती है, तीसरी उस पहाड़ पे रहती है। देखिए, एक पहाड़ पे एक घर में एक औरत से मिलने के लिए हमने कुछ 6-7 घंटे का सफर किया। अब दूसरे पहाड़ पे 7 घंटे, तीसरे पहाड़ पे 7 घंटे। अगर हम 2-3 दिन रहते वहाँ तो हम वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करे ना जी, हमारा ये हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अब्दुल हलीम का आपने जिक्र किया, आपके समझिए नस्वार डालना जायज है? अगर खवातीन डालें तो ये क्या सवाल है? आप कोई और सवाल आपने अभी मुझे नहीं, मैडम आपने सारा मामला मीडिया पे डाल दिया है। ये बताया तो है आपको। ये आपके पास क्या एविडेंस है कि वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं? हम अभी बात करते हैं। अभी आपने हाँ जी जी आपने अदालत में ये कहा है, तमाम मामला आपने मीडिया पे डाल दिया कि मीडिया गैर तस्दीक। मैंने बिल्कुल चीफ साहब ने ये कहा है कि आप सोशल वर्क करने वाले लोगों को पहले देखिए, एक सेकंड। हाँ, मीडिया के बारे में मैं ये जरूर कहूँगी कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि पाकिस्तान की देखे बदनामी इमेज जो है वैसे ही दुनिया में बर्बाद है, क्योंकि हम खुद हैं भी बर्बाद। ऐसा नहीं है कि हम ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं की, जो हमारे मुल्क में नहीं होती है, मैं आपके तवज्जुह से मीडिया हाउसेस से ये अपील करती हूँ कि वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए फंड्स मुकर्रर करें, स्कॉलरशिप दें। इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी बाकायदा एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एविडेंस के साथ जब चीज़ हो तब मीडिया को ये चीज़ लानी चाहिए, क्योंकि पूरी कौम ट्रॉमाटाइज हो गई, पूरी कौम जो है उसको सदमा पहुंचा और बदनामी अलग हो गई। आप बात करें जी। मेरे भाई, आप सब हमारे मोहतरम अच्छे दोस्त हैं। प्लीज़ ऐसे खबर शाया करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट ज़रूर लें, अपनी तहकीकात भी करें। ये ना कि हम सब सारा दिन सच बोलेंगे, आप भी अपनी तहकीकात करें और फिर हमें बताएं कि हमारी तहकीकात की वजह से ये बात हुई है, तो हम आपको तसल्लीबख्श जवाब देंगे। मैं बार बार कहता रहा, आप मेरी बात नहीं मानते रहे। ये झूठा इंसान जिसको आपने अभी लीडर बना दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा अमेरिका का वीज़े के चक्कर में है कि मुझे इसमें नेशनलिटी मिल जाएगी। ये झूठा है, फरेबी है, बकवासी है। इसको तो अरेस्ट करना चाहिए 419-420 में। इसने अपने वालिद पे मुकदमा बनाया, किस चीज़ की एफआईआर मेरे पास है। इसने अपने भांजे को अरेस्ट किया, भांजे को इसके अपने अलग से अपना आप बात करें ना, आप हमारे मैं आपकी बात नहीं करूँ, मैं ये अलग से बात करें, हमारे साथ आप क्यों? मैं ये कहता हूँ कि इसके भाई, इसका भांजा इसने खुद अगवा करके एफआईआर कराया था, और वो एफआईआर अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं है। इसकी आप देखिए, कभी कहते हैं 5 कत्ल होगी, कभी कहते हैं 4 कत्ल होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये 2, एक मुजफ्फराबाद में और एक पिंडी में है। तो ये जनाब सर इस्लामाबाद 2 भाई इसके गिरफ्तार किए अंडर मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस। इसने क्योंकि जज साहब को एप्लीकेशन दी है कि मुझे कमिश्नर से और डीआईजी से खतरा है, तो अभी तक उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन है। तो जैसे हम अभी जज साहब के पास हम एप्लीकेशन करेंगे, इस पर एफआईआर करें।
थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल कि आप अभी ज़रा अच्छा वो करें, रिस्पॉन्स ज़रा ठीक दें कि जी ये बात झूठ है, पाकिस्तान का इज्जत है. इंसानी हकूक की रहनुमा फरजाना बारी और फौजिया सईद सुप्रीम कोर्ट का जिरगा केस, कोहिस्तान जिरगा केस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी. उनका कहना था कि 2 खवातीन से वो मिलकर आई हैं, बाकी खवातीन का उन्हें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन इन खवातीन की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. मीडिया के हवाले से उनका कहना था कि मीडिया पर इस लिहाज से भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसी किसी भी खबर की पहले तहकीकात की जाए, फिर उसे नशर किया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इमेज मुतासर हो सकता है. मजीद खबरों की जान बढ़ेंगे बलोचिस्तान के हवाले से. कलात में 100 से ज्यादा एकड़ रकबे पर काश्त की जाने वाली चेरी का शुमार क़ुव्वत बख्श और महंगे फलों में होता है. चेरी का शुमार कुव्वत बख्श और महंगे फलों में होता है. ये कलात में 100 से ज्यादा एकड़ रकबे पर काश्त किया जाता है. कलात की चेरी मखसूस आबोहवा की वजह से ज्यादा मीठी है और इसे बैरून मुल्क बेहद पसंद किया जाता है, मगर हुकूमती इदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से कलात की चेरी को बैरून मुल्क दरामद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मकामी काश्तकारों को माकूल मुआवजा नहीं मिलता है. कलात की चेरी की काश्तकारों का कहना है कि अगर चेरी को बैरून मुल्क दरामद किया जाए तो इससे काश्तकारों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा. उन्होंने कहा कि कलात में बिजली के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं है और हुकूमत ने कलात में लोड शेडिंग खत्म नहीं की तो बहुत जल्द ये कीमती बागात खुश्क हो जाएंगे और जमींदारी से मुंसलिक हजारों घरानों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ जमींदारों को 14 घंटों की तवील दौरानिया की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ बिजली के वोल्टेज में इंतहाई कमी के बायस जमींदारों की कीमती मशीनरी भी जल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कलात में बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज में कमी के मसले पर हुकूमत और कैसको हुक्काम ने तवज्जो नहीं दी तो चेरी, सिमज, सेब, आड़ू, खुबानी और गंदम की तैयार फसलें तबाह होंगे, जिससे जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा. कराची से खैबर तक में फिलहाल इतना ही. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए.